Can we start? We are good to go. Good afternoon, ladies and gentlemen. Distinguished guests, delegates of CTPD Con Era 2023, the first virtual international conference on educational reforms and advancement, organized by the Council for Teachers Professional Development, CTPD, in collaboration with the organizing partners, KR Mangalam University, Gurgaon, Haryana, India, Galgotia University, Greater Noida, Uttar Pradesh, India, Saraswati College of Professional Studies, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India, Sadyog Darshan Institute of Education and Research, Faridabad, Haryana, India, DAV College, PG, Dehradun, Uttarakhand, India, and Azad College of Education, Satara, Maharashtra, India. We are profoundly happy to associate as our conference knowledge partners with Vishwa Yuvak Kendra, New Delhi, India, Yuhan Touch Foundation, India, Social Development and Research Foundation, India, Council for Teachers Education Foundation, India, Policy Research Center, Bangladesh, and our publication partners of national and international recognition, Easy Education Publishing, Red Shine Publications, and International Journal of Education and Allied Science. Our track 4 covers the topic Equitable and Inclusive Higher Education for Sustainable Development. I, Jennifer Robinson, Assistant Vice Principal, Indian School Al-Wadi Al-Kabir, Sultanate of Oman, and it is a great honor for me to be the moderator for this educative technical session of CTPD Con Era 2023. The track 4 is on the theme Equitable and Inclusive Higher Education for Sustainable Development, and the sub-theme for this technical session, subtrack 4.1, Equitable Access to Quality Education. Today's session is all about education is recognized as an integral element of the sustainable development of our country. Making education accessible to all by the way of accommodating their various needs has many implications for sustainable development. This track will examine the status of inclusive education in the various higher education sectors in order to identify the challenges, opportunities, and barriers to achieving inclusive education. Of course, we have eminent speakers, paper presenters who shall be sharing the expertise and insight in this field. I am very delighted to have a warm welcome of our esteemed chair, Dr. Kaushal Sharma, Associate Professor and Head, Department of Hearing Impairment, Faculty of Special Education, Dr. Shaguntala Misra, National Rehabilitation University, Lucknow, Uttar Pradesh, India. And also our co-chair, Dr. Upasana Singh, Director, Human Touch Foundation, Greater Noida, Uttar Pradesh, India, for gracing us with their presence and leading this significant session at CTPD Con Era 2020. I also would like to welcome our convener, Dr. Professor Tanya Gupta, and also our co-convener, Dr. Pooja Verma, to this conference, track 4. I feel honored to introduce a very important person here, Dr. Jugnu Gatar Bhatia, the principal, Satyog Darshan Institute of Education and Research, Faridabad, India, for the overview of the plenary session. Thank you so much, Jennifer ma'am.
Thank you, ma'am. Honorable Chair, Dr. Kaushal Sharma, and Co-Chair, Dr. Upasana Singh, Moderator of the track, Jennifer Robinson, ma'am, Executive Members of CTPD India, and our valued paper presenters and participants from various colleges and universities. A very good afternoon to one and all. I, Dr. Jugnu Bhatter Bhatia, feel honored and privileged to welcome you all on the behalf of the organizing committee of 2 days International Conference on Educational Reforms and Advancements. Our track number 4, that is based on the equitable and inclusive education. Inclusivity is at the heart of a progressive education system, and this track number 4 will focus on addressing disparities in higher education and exploring strategies to ensure equitable access to quality education for all. Education is a key part of sustainable development. The Sustainable Development Goal 4, that is SDG 4, aims to ensure inclusive and equitable quality education for all. SDG 4 also promotes lifelong learning opportunities for all. Our track number 4.1, the main theme of this particular track is equitable access to quality higher education. And the other subtracks are the models and practices of educational innovation for ensuring equity, gender equity in higher education, accessibility and equitable quality education for the specially abled, education in emergencies, that is conflict zone, pandemics, climate change and disaster. And last is the quality assurance in higher education. With this note, without much ado, let's start with the technical session and my best wishes to all paper presenters. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It is once again my honor to introduce our esteemed chair, Dr. Kaushal Sharma, Associate Professor and Head, Department of Hearing Impairment, Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Misra, National Rehabilitation University, Lucknow, Uttar Pradesh, India. Sir has completed his PhD and master degree in special education. He has been working in the field for the last 23 years and involved actively. At the moment, he is advising and supervising the master's and graduate level students as well as the research scholars in teacher training in special need education and mentor to many students in India and abroad. He holds various positions nationally and internationally at university level such as NJP Rohilkhand University, UEE Mission, MP Boj Open University and Addis Ababa University, Ethiopia. He is also holding positions in Academic Council, Board of Universities and resource person to various universities and colleges. Additionally, he has participated and presented various papers in the national and international seminars and conferences and participated in many research projects in a disability field. He has been author and co-author of more than 24 books dealing with various areas of special and general education. Sir, it is our privilege that you are here with us. Please accept as a token of gratitude from the organizers of the conference this virtual memento. With your guidance, we are confident that this session will be resounding success, leaving a lasting impact on all our participants today. May I invite you, sir, to deliver your address. Warm wishes to you all. Thank you very much, Dr. Tania, Dr. Jennifer, Dr. Juno. So let me try Sorry to interrupt, sir. If you have any presentation, I'll come. Yeah. I'm just going to share it. Okay, sir. Is it visible? Right.
to see, sir. Is it visible? No, sir. Let me check. Now is it visible? Yes, yes. Okay, thank you very much. So I would like to welcome all the participants who are participating in this CTPD Con and conveying my best wishes to you, to your organizers and all who are actively engaged in this session. Let me start with some basic points. When we are, may I allow to have the bilingual or? Yes, sir, that will be good. Because I think some of the participants are from that background. So, okay. So when we are talking about the equitable and inclusive higher education for sustainable development, it is a very debatable issue. And I congratulate you all that you have taken this topic as a debate. Equitable and inclusive higher education, these are situated in both the extreme ends on the practical grounds. But theoretically, we are just so with the inclusive education and equitable type of things. जब हम बात करते हैं इक्विटेबल क्राइटेरिया इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन जहां हम बात करते हैं कि साहब हमारे पास में कुछ डिसेबल्ड बच्चे होंगे, कुछ नॉन डिसेबल्ड बच्चे होंगे, उनको हम मिलाएंगे एक क्लास में, जैसे हम कहते हैं अंडर वन रूफ, हम उनके साथ में इंटरेक्ट करेंगे और ये हमारा इंक्लूजन पार्ट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये एक बहुत ही अजीब तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसे हम इंक्लूजन के नाम पर दुनिया के सामने रख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इंक्लूजन डिसेबल्ड लोगों का ही होगा, दूसरों का नहीं हो सकता। और रही बात इक्विटेबल होने की, तो आमतौर पर हम देखते हैं अपने जीवन में, अपनी क्लासेस में, अपने यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में कि हम इक्विटेबल नहीं होके हम हो रहे हैं वहां पर कि इक्विटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम इक्वालिटी पर बात करने के बाद ये सोचते हैं कि आप इक्विटी हो जाएगी, ऐसा है नहीं। इक्विटी और इक्विटेबल होना दोनों बातें एक, इक्विटी और इक्वालिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। इक्वालिटी में आपके पास में जो बाय नॉर्म्स कोई चीज है वो आप सबको एक जैसी पैरिटी के साथ में सबको एक बराबर दे रहे हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं इक्विटेबल, देन इट कम्स टू द अमाउंट ऑफ नीड्स। ये नीड बेस्ड है, ये राइट बेस्ड अप्रोच है। और जो इक्वालिटी है वो राइट बेस्ड अप्रोच नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम दूसरों को दे रहे हैं। सो मैं काम यहीं से अपनी बात को शुरू करता हूं कि जहां हम हायर एजुकेशन की चैलेंजेस की हम बात करते हैं, तो हायर एजुकेशन सबको मालूम है, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल फॉर द सोशल मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। हम जब बात करते हैं हमारे पास जितनी वर्कफोर्स है, वो जितनी कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में हमारा हायर एजुकेशन एक बहुत मजबूत पिलर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में सामने खड़ा होता है, क्योंकि हम काम करवा सकते हैं जो हमारे पास एजुकेशन जिनके पास में है। तो हायर एजुकेशन में जब हम अपनी वर्कफोर्स को देखते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये भी देखें कि क्या उनके सामने कोई चैलेंजेस हैं या नहीं। हम बहुत सारे देशों को उदाहरण के तौर पर देखते हैं इंक्लूजन में, हम बहुत सारे खासतौर पे यूएस को, कनाडा को, यूरोपियन कंट्रीज को, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को हाईलाइट करते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया उनसे अलग है। हमारे पास जो वेरिएशंस हैं बहुत हैं, हमारे पास एक रेंज बहुत लंबी चौड़ी है। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं लो इनकम फैमिलीज के हैं, मिड इनकम फैमिलीज के हैं, हायर इनकम फैमिलीज के भी हैं, अंडर रिप्रेजेंटेटिव माइनॉरिटी ग्रुप्स के भी हैं, रूरल एरिया में भी रहते हैं। उनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस अलग हैं, उनके माइंडसेट्स अलग हैं, उनके रिचुअल्स, उनकी डाइवर्सिटी, यानी हम जब सोशल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वो हमारे पास में एक बहुत बड़ी रेंज है।
इसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं। हमारे फाइनेंशियल बैरियर्स हो सकते हैं, जियोग्राफिकल बैरियर्स हो सकते हैं, हमारे एजुकेशनल बैरियर्स हो सकते हैं, पार्टिसिपेशन है, एकेडमिक रिप्रेजेंटेशन है, या क्वालिटी यूनिवर्सिटीज, क्वालिटी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज शायद हमारे पास में कम हो रही हूँ। ये भी एक कई कारण हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन इक्विटी इश्यूज हैं हमारे हायर एजुकेशन में, मैं सीधे सीधे उन पर आना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लें एक्सेस की। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्सेसिबल है, सबकी पहुंच में है? स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज आर लेस लाइकली टू अटेंड कॉलेजेस। हम हालांकि ये बात पहले कह सकते थे, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि शायद ये चीज थोड़ी कम हुई है। राइट टू एजुकेशन आ गया, उसके कारण से हमारे लो इनकम फैमिलीज को भी स्कूलों तक जाने का मौका मिला। लेकिन एक बात और है, स्कूल तक पहुंच जाना और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के या उनकी फैसिलिटीज को पूरी तरीके से इम्बाइब कर लेना, क्या ये दोनों बातें सेम हैं? हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से एक्सेस नहीं हो पा रहा। एक स्कूल तक एक बच्चा पहुंच तो जा रहा है, लो इनकम फैमिली का है या किसी और वजह से भी दूर दराज का है, कैसे पहुंच रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसे जियोग्राफिकल कंडीशंस भी हैं जहां स्कूलों तक बच्चे पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है, और वो भी ऐसे बच्चे का जो व्हील चेयर पर है। हमारे पास स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते नहीं बने हुए। स्कूलों में हमारी क्लासेस अगर 2 मंजिल पे बना हुआ स्कूल है, सेकंड फ्लोर पे चल रही है, फर्स्ट फ्लोर पे चल रही है, बच्चा कैसे जाएगा ऊपर तक? सीढ़ियां हैं, रैंप्स नहीं है। रैंप्स हैं तो उनके रैंप्स का जो इंक्लिनेशन है वो शायद बहुत अच्छा नहीं है। तो हमें ये एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखना होगा कि स्कूलों में एक्सेसिबिलिटी ना केवल फिजिकल डिसेबिलिटीज की बात करें, हम हर तरीके की बात कर सकते हैं। जो बच्चा लो विजन वाला है, क्या हमारे पास कोई ऐसे साधन हैं कि हम उनको बुक्स के माध्यम से पढ़ा सकें? अगर हम बुक्स नहीं दे रहे तो क्या हमारे पास दूसरी चीजें हैं जो हम उनको कंपनसेट कर सकें? ये हमारे सामने बड़ा समस्या है। दूसरी बात हम बात करते हैं अटेनमेंट की। जो अंडर रिप्रेजेंटेड माइनॉरिटीज ग्रुप हैं वो कैसे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं? हायर एजुकेशन की चूंकि हम बात कर रहे हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो हायर एजुकेशन तक जो आ रहे हैं उनका अटेनमेंट कैसा है? क्या उनका एकेडमिक बैकग्राउंड उस पर असर नहीं डालता? वो किस स्कूल से पढ़ के आए हैं? हम हायर एजुकेशन में ये बात कह देते हैं कि ग्रेजुएट बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पका हुआ घड़ा आता है, हम उस पर केवल पॉलिश करने का काम करते हैं। लेकिन बनके तो वो पिछली क्लासेस से आया है, प्राइमरी से और सेकेंडरी से। हम उसको सुधार नहीं सकते। अगर वो टेढ़ा है तो ठीक है, अगर वो उसमें कोई कमी है तो हम उस कमी को दूर नहीं कर सकते। ये कह के हम अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। बड़ी मजे की बात ये भी है कि ये कह के जब हम अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं तो हम वास्तव में अपने कामों को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। हम अटेनमेंट को जो उनका पीछे है पहले ही, हम उसको और ज्यादा पीछे कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे सामने है, एकेडमिक प्रिपरेशन है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, उनके डिस्क्रिमिनेशन है। अभी जैसे कुछ दिन पहले यूजीसी ने एक चिंता भी जाहिर की और अब नया सर्कुलर भी आया कि जो आपके एलजीबीटी ग्रुप है उनको भी स्कूलों में एडमिशन देने की बात हुई है, ट्रांसजेंडर्स को भी बात हुई है स्कूलों में, कॉलेजेस में देने के लिए। लेकिन ईमानदारी से बताएं, हम सब जिन जिन भी एकेडमिक ग्रुप्स से जुड़े हुए हों, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हों, याद करिएगा हमारे यहाँ कितने ट्रांसजेंडर्स पिछले 5 सालों में स्कूलों में आए। आरटीई एक्ट आने के बाद में हमारे पास कितने ट्रांसजेंडर्स आए भी थे या नहीं? और आए थे तो क्या हमने उनको अंदर स्कूल में लिया है, कॉलेज में लिया है, या हमने उनको अनअटेंडेड करके बाहर भेज दिया? ये बड़ी समस्या भी शायद हमारे सामने होगी। हम इसको स्वीकार करें या ना करें ये हमारी मर्जी हो सकती है, ये हमारी बेशर्मी हो सकती है, मैं दूसरी भाषा में कहूं, लेकिन शायद ये हमारी जिम्मेदारियों के प्रति अपनी आंखों को मूंद लेना भी हो सकता है। आउटकम्स की बात हो रही है, जितने बच्चे हमारे पास हायर एजुकेशन में आ रहे हैं, एक स्टडीज कहती हैं कि जितने भी बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन में हैं उनका 30% इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में होता है, और हायर एजुकेशन से पास आउट होने वालों की संख्या उसमें रह जाती है जस्ट 50%। यानी 30% अगर अंदर आए हैं तो उसके हाफ 15% हमारे बाहर निकल के जाते हैं।
ये स्टडीज केवल ये बताती हैं कि हमारे यहाँ पास होने वालों की संख्या क्या है, उनके आउटकम्स क्या हैं, ये हम नहीं जानते, क्योंकि शायद इस पर बहुत ज्यादा रिसर्चेस नहीं हो रही हो या हम कराना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि इससे हम भी एक सवालों के घेरे में आ जाएंगे कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, हम जिस इंस्टीट्यूशन में अपनी एजुकेशन को चला रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके आउटकम्स क्या हैं। यही एक कारण है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब हमारा ये रिफॉर्म हुए हैं सिलेबस के, करिकुलम के, तो ये लिखना जरूरी हो गया है कि हमारे पास प्रोग्राम आउटकम्स क्या होंगे, हमारे पास कोर्स आउटकम्स क्या होंगे। हम कैसे ये मान सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में आया है, हम उसे कुछ भी नहीं करके उसमें बेस्ट आउटकम की प्रैक्टिसेस को सोच रहे हैं कि वो कर लेगा? बड़ा मुश्किल काम है। शायद जो हमारे पास हाई पेइंग जॉब्स हैं, टीचिंग हाई पेइंग जॉब है, हम आज की तारीख में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को गवर्नमेंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो शायद उसको 50 to 60,000 मिनिमम हम दे रहे हैं। 50 और 60,000 पर मंथ कोई कम बात नहीं होती है किसी कॉलेज में एक टीचर के लिए। लेकिन हम अगर ये देखें कि उनका आउटकम कितना है, हम देखेंगे उनके रिसर्च पेपर्स नहीं है, जो हैं वो बहुत ही अंडररेटेड हैं। हम देखेंगे कि उनके शायद जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं वो उस तरीके से फुलफिल नहीं हो रहे। जब सारे ही हमारे पास पढ़े लिखे बड़े काबिल लोग हमारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में हैं, तो फिर हमारे स्टूडेंट्स अपना परफॉर्मेंस नीचे की तरफ क्यों रख रहे हैं? क्या इसलिए कि वो हमारे पास बहुत डिफरेंट ग्रुप से आए हुए हैं और हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे, या इसलिए कि हम ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन शायद वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए? उनके पास स्किल्स नहीं है। गवर्नमेंट चिल्ला रही है कि स्किल बेस्ड कोर्सेज रखिए। हमारे पास में देखिए कि हम अगर स्किल बेस्ड कोर्सेज रख दें, हम चला भी लें, सपोज ये हम कोई ऐसी चीज रख लें जहां पर हाथों का काम करना पड़े, सपोज लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड या लेदर स्किल्स हम सिखाना चाहें, कोई स्विंग स्किल्स सिखाना चाहें, कोई मशीनरी स्किल्स सिखाना चाहें, मैसनरी स्किल्स सिखाना चाहें। आप खुद सोचिए हमारी सोसाइटी क्या है। हमारे सोसाइटी में जब कामों को टैग किया गया है किसी खास प्रकार की कास्ट के साथ में, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम रातों रात अपने स्कूल या कॉलेजेस में बदल जाएंगे। हम ये बात स्वीकार कर लेंगे कि हमारा बच्चा भी जाके एक बार्बर का काम कर लेगा, जबकि हमने उसको भी एक कास्ट के साथ जोड़ रखा है। जब तक ये पूरी सोच हमारी नहीं बदलेगी इस पूरे सोसाइटी में, शायद तब तक हम स्किल बेस्ड आउटकम्स की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। अगर करना चाहते हैं तो हमें भी ये एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हमारे पास टैग्ड हैं हम लोग, ये आदमी लोग घरों के किचन में काम नहीं करते, क्योंकि अगर हम करते हैं तो शायद हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलें आ जाती हैं। डिस्पैरिटीज हैं हमारी एक्सेस से लेके डाइवर्सिटी, हमारी जो मेन है जिस पर हम बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी इंक्लूजन का सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट है। हम वो देश हैं, खासतौर पे मैं अगर इंडिया की बात करूं, हम वो देश हैं जहां भाषा के आधार पर तो हमने अपने स्टेट्स बना रखे हैं। भाषा के आधार पर हम लोगों को ये सोचते हैं ये हमारे लोग हैं, ये किसी और के लोग। हम जिस आधार पर देखते हैं, जब हम एक बात करते हैं पूरे देश में तो शायद हम स्वीकार नहीं करते। हमारे बार बार हमें कहना पड़ रहा है कि मातृभाषा में या मदर टंग में हम अपने एजुकेशन को दें, और वो भी कब कहना पड़ रहा है? 72 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद। क्यों अभी तक ये नहीं हुआ? क्या ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? ध्यान रखिए कि डाइवर्सिटी का मतलब केवल इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारी क्लास में अलग कास्ट के, अलग क्रीड के, अलग लैंग्वेज के, अलग रंग वाले, अलग लंबाइयों वाले, अलग नीड वाले बच्चे हैं। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि उनकी सबकी नीड्स भी अलग हैं। हम यूपी में बैठ के, मेरे को याद आता है कि मैं एक बच्चे को एग्जाम्पल कहीं साउथ में दे रहा था, और किसी से मैंने पूछा कि हम 4 रोटी सुबह खाते हैं, 2 रोटी दोपहर में खाते हैं, 2 रोटी शाम को खाते हैं, तो वो मेरा मुंह देखने लगा। उसको एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। मैंने पूछा क्यों नहीं आया, तो पता चलता है कि भाई उनके लिए रोटी एक लग्जरी चीज़ है। वो रोटी नहीं समझ पा रहे हैं कि रोटी क्या है। ये बहुत साल पहले की बात है। उन्हें आप राइस का एग्जाम्पल दे दीजिए, वो केवल चावल खाते हैं सुबह शाम दोपहर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी डाइवर्सिफाइड क्लासरूम है, हमारे एग्जाम्पल भी डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। एक जैसा एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन हमारे काम नहीं आने वाले।
हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात आपको बताऊं कि मेरे इस क्लास में एक ही साथ में ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप बच्चे भी हैं, डेफ बच्चे भी हैं और ब्लाइंड बच्चे भी मेरे साथ में पढ़ते हैं, और नॉर्मल बच्चे जो साइटेड भी हैं और सुनते भी हैं वो भी क्लास में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देते समय मुझे 3 या 4 अलग अलग तरीके के टेक्निक्स को अपनाना पड़ता है, जिससे कि ब्लाइंड बच्चा भी विजुअलाइज कर सके, हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा भी सुन सके या समझ सके, इंटरप्रेटर्स मेरे साथ में रहते हैं। तो डाइवर्सिफाइड नीड्स को हमें कैटर करना है, तब हम बात इंक्लूजन की करेंगे। इंक्लूजन का मतलब ये नहीं कि 4 बच्चे हमारे अलग अलग तरीके के बिठा लिए हो गया जी इंक्लूजन। अगर ऐसा है तो माफ कीजिएगा, हम इंक्लूजन नहीं कर रहे, हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी, हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी। और केवल एजुकेशन सिस्टम को, देश को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हम अपने देश के बच्चों को खुद एक अपंग बना रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं उनके साथ में कि जब वो बड़े होंगे और एक नागरिक बनने की कदम बढ़ाएंगे उस दिशा में, तो वो एक्चुअली नागरिक नहीं होंगे, वो होंगे बेकार, अनप्रोडक्टिव, ये वाली चीजें होंगी। दूसरी बात आती है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी जो हायर एजुकेशन की कॉस्ट है, आप देखेंगे कि आज की तारीख में काफी ज्यादा हो चुकी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इन दोनों के बीच में एक आप बहुत बड़ा अंतर देखेंगे। जिस जगह पर हम बीए कर लेते हैं 3 या 4 हजार में, वहां पर 20 हजार में भी बीए हो रहा है। हम हायर एजुकेशन में बीएड की ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पर बीएड हमारे पास में शायद 10-15 हजार में भी पर सेमेस्टर हो जाता होगा, वहां पर हमारे पास 1-1 लाख रुपए भी फीस है। ये जो 1 लाख पे करने वाला बच्चा है, वो टीचर बन के 50 हजार रुपये महीना लेगा, खुद सोचने वाली बात है। और अगर लेगा तो तैयार होगा। हम कितने हैं जितने जो उसको पे कर रहे हैं। जब आप उसको जॉब देने की बारी आती है, तब हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसे देख रहे होते हैं 10,000 15,000 में बहुत सारे टीचर मिल जाते हैं, काम करना हो तो करो, नहीं करना हो तो जाओ। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में नौकरियां हैं नहीं, जो है वो खत्म हो जा रही है, धीरे धीरे और जाएगी। आप क्या कर रहे हैं, कॉस्टिंग कहाँ है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको मेडिकल का। जिस जमाने में एमबीबीएस वगैरह के लिए हम लोग शुरुआत में देख रहे थे, बदकिस्मती से मैंने भी ज्वाइन किया था, ये बहुत पुरानी बात हो गई। उस समय शायद मेरे पास फीस, मुझे याद है कि शायद एमबीबीएस की फीस होती थी 10,000 रुपए के आसपास में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। आज हम देख रहे हैं कि वो 25-50 लाख रुपए तक जा रही है, जबकि उस जमाने में सर्जरीज वगैरह के लिए उनके पास में उनको वो लाना पड़ता था, डेड बॉडीज वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता था। आज हमारे पास में वर्चुअलाइजेशन के दौर में हमारे पास सारी चीजें वर्चुअल हैं, सारी चीजों के हमारे पास में बने हुए स्टिमुलेशंस हैं, या सॉरी सिमुलेशंस हैं। इन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में जब हम काम कर रहे हैं, तो ये वन टाइम कॉस्ट होना चाहिए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट को खरीदने के लिए। हर बार हर फीस के साथ में 25-50 लाख रुपया जाना, ये कहाँ का सोच है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। बीएड करके सारे लोगों को टीचर ही बनना है, वो टीचर बन के प्राइमरी स्कूल में जाके कमाएगा। कितने लोग उसको नौकरी देने वाले हैं। प्राइमरी स्कूल में हमारे यहाँ जाके टीचर्स की हालत देख लीजिए, अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं। स्कॉलरशिप्स बढ़ रही हैं, एक रेवड़ी कल्चर, बड़ा अच्छा शब्द आया था बीच में कहीं, लेकिन स्कॉलरशिप्स बढ़ रही हैं। मैंने एक ही बच्चे को 3-3 जगह से स्कॉलरशिप लेते हुए देखा है, और ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप के बगैर वो एक दिन पढ़ नहीं सकते और उन्हें कभी नहीं पढ़ी। ग्रांट्स की हम बात करते हैं, पता नहीं कौन ग्रांट देता है, कौन ग्रांट ले पा रहा है। ज्यादातर आप इंस्टीट्यूशन से पूछेंगे तो उनके पास में ग्रांट्स नहीं है, वो अपने फाइनेंशियल एड्स खुद अपने डेवलप कर रहे हैं, और कहीं से भी कैसे भी भीख मांग के भी कार्यक्रम चला रहे होंगे, लेकिन शायद चला रहे हैं। इसीलिए उस डिबेट में नहीं पड़ेंगे, लेकिन बात यह है कि हमें यह शब्दों को ध्यान रखना होगा कि अफोर्डेबल होना चाहिए, तब हम बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा दिया, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि मैं एक स्कूल में जाता हूं पढ़ने के लिए, मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, मुझे साथ में फोटोग्राफी पढ़नी है। टीचर मुझसे कहता था कि भाई भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई कोर्स नहीं है। क्यों कोर्स नहीं है साहब? मैं बायो के साथ में वो पढ़ना चाहता हूँ, मेरा टारगेट है कि मैं अगर बायो के साथ फोटोग्राफी पढ़ लूंगा तो हो सकता है कल जाके ज्योग्राफिक चैनल में या डिस्कवरी वगैरह में काम कर सकता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दोनों चीजें मेरे साथ होती, तो मैं शायद एक
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकता था, लेकिन वो मेरे को इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। वो ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो ये सब कॉम्बिनेशंस नहीं है। अरे भाई, आपकी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे आप पढ़ाइए ना। मेन्यू सिस्टम हमारे रेस्टोरेंट्स के लिए ही है कि हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा मेन्यू बना है? कोशिश करिए कि कभी रेस्टोरेंट में जाके कभी हम कॉन्टिनेंटल भी लें, चाइनीज भी लें, इंडियन कुजीन भी लें, ये भी लें, वो भी लें, बस सब में से थोड़ा 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 हम ऑर्डर कर लेते हैं। हम हायर एजुकेशन में ऐसा क्यों नहीं करते? एक सब्जेक्ट इस ग्रुप से, उस ग्रुप से। हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी ये कहती जरूर है कि ऐसा कर लीजिए। कितने लोग कर रहे हैं हमें नहीं पता, या और कितने लोग कर पाएंगे, इसको कितना आगे तक ले जा पाएंगे, शायद ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हमारी सपोर्ट सर्विसेज हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा मैंने बताया कि मैं जब क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ इंटरप्रेटर्स रहने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे साइन लैंग्वेज लर्नर्स हैं उनको मेरे को इंटरप्रेटर्स के जरिए ही पढ़ाना पड़ेगा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं कि शायद हमारी यूनिवर्सिटी एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो इस तरीके का काम कर रही है, जो इस तरीके का इंक्लूजन कर रही है, जहां हमारे पास हर तरीके की डिसेबिलिटीज वाले बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं और हम उनको अलग अलग तरीके से उनकी नीड्स को कैटर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बेस्ट इंक्लूजन अवार्ड और बैरियर फ्री इन्वायरमेंट अवार्ड से भी 2015 में हमें प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका। उसके बावजूद मैं यहाँ पे अपनी ये नहीं बता रहा हूँ कि हम कितने महान हैं, मैं इससे भी बड़ी महानता की बात बता रहा हूँ कि केवल मेरी फैकल्टी में ही 18 मुझे चाहिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, और हम काम चला रहे हैं 5 के साथ। सोचिए कि हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं दूसरों से जब ये कहता हूं कि भाई आप क्यों नहीं चला रहे हैं, तो वो भी तो ये पूछ सकते हैं तुम्हें तो 5 मिले हैं, हमें और कहां से ला के दोगे? तो ये भी एक बात है। सपोर्ट सर्विसेज हमारे पास नहीं है। हमारे पास कितने बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में ऐसी जगह से आ रहे हैं जो सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल पर, जिनके पास में एक इस तरीके का एनवायरनमेंट था कि वो एक बड़े एक हेडेक बन चुके हैं हमारे हायर एजुकेशन में। उनकी कुछ वेलबींग प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कुछ साइकोलॉजिकल सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर हम इन तरीके की चीज़ों को कैटर कर रहे होंगे या एड्रेस कर रहे होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। करिकुलर रिलेवेंस हमारे पास में है या नहीं है, इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। एजुकेशनिस्ट्स को बिठा दीजिए तो आधे इधर आधे उधर बढ़ जाएंगे और बीच में कुछ लोग रह जाएंगे जो कहेंगे कि पता नहीं बहुत कुछ है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि सबसे बड़ा सस्टेनेबिलिटी चैलेंज तो यही है, हमारा करिकुलम। हमारा करिकुलम पहले हमारे पास में ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम था तो हमने वहां से कॉपी कर रखा था। आजकल हम बगैर गए बगैर समझे अमेरिकन सिस्टम को कॉपी कर रहे हैं। इंडिजिनस सिस्टम कहाँ है? हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि विजडम में और नॉलेज में क्या फर्क है, लेकिन हम क्या केवल नॉलेज को ही बात करेंगे, विजडम की बात नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसा हमारे पुराने नॉलेज सिस्टम में कहा गया है, तो इसलिए हम कॉपी कर लेंगे। विजडम कहाँ है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। सब जानते हैं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट होंगे वो अपना बहस बाद में कर लें, लेकिन ये एक बात है कि जो टोमेटो है, घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं टोमेटो, वो सब्जी है या फल? ये सब जानते हैं कि वो सब्जी है या फल। आधे लोग कहेंगे सब्जी है, आधे लोग कहेंगे फल है। साइंटिफिकली इट इज ए फ्रूट, टोमेटो इज ए फ्रूट, लेकिन उसके बावजूद हम उसे फ्रूट सलाद में काटते नहीं, हम फ्रूट सलाद में उसे कभी यूज नहीं करते। ये विजडम है, नॉलेज वो है कि वो फ्रूट है। यानी हमारे पास में करिकुलर रिलेवेंस हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ होना चाहिए। इसमें हम हमारे रिसोर्सेस होने चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ में दिक्कत यह है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलता। वहां पर नॉलेज तो मिल सकती है, लेकिन विजडम को हम कैसे उसमें इनकलकेट करें, ये हमें सोचना होगा। कम्युनिटी एंगेजमेंट एक अलग एस्पेक्ट है और ये भी एक बहुत जरूरी है हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए। यूनिवर्सिटीज बेसिकली 3 चीजों बनी होती हैं। एक होती है रिसर्च, दूसरी होती है टीचिंग और तीसरी होती है एक्सटेंशन एक्टिविटीज। हम लोग एक्सटेंशन एक्टिविटीज में सबसे कम हैं। हम कम्युनिटी का एंगेजमेंट नहीं करते। काश ऐसा होता कि हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने आसपास के किसी एरिया को अडॉप्ट कर लेते और केवल उसी एरिया पर अगर हम फोकस कर लिए होते अपने आसपास के,
हमारे पास बीएड कॉलेजेस चलते हैं, हमारे पास बाकी कॉलेजेस चलते हैं, हम क्यों नहीं वॉलंटियर्स की तरीके से उसी कम्युनिटी में अपने अपने प्रोग्राम्स को, जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स के प्रोग्राम होंगे उनके साथ में अगर काम करते तो कम्युनिटी इंगेजमेंट भी होता और कम्युनिटी भी डेवलप होती। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ कम्युनिटी कॉलेजेस नहीं होते, अमेरिकन सिस्टम में कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं। तो क्यों होते हैं, इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सस्टेनेबिलिटी के लिए रिसर्च होना बहुत जरूरी है। हम रिसर्चेस कर रहे हैं क्योंकि रिसर्च होना जरूरी है, रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, रिसर्च फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, रिसर्च फॉर द सेक ऑफ सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आप देखेंगे हमारे, मैं इसका जवाब किसी से नहीं चाहूंगा, लेकिन शायद हम अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें, हमारे बीएड एमएड जितने भी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं, उनकी एक डिसर्टेशन को, टॉपिक्स को उठा के देखिए, वो कितने सस्टेनेबल हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम फ्यूचर रिसर्चर्स कैसे पैदा करते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के विषय में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चूंकि हमारे इंटरकनेक्शंस हैं हमारे एनवायरमेंट साइंसेस के साथ में, सोशल साइंसेस के साथ में, इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ में, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, आजकल तो नया शब्द आ गया ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइज भी बनी है, लेकिन ग्लोबलाइज आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइज पर्सपेक्टिव्स हमारे हैं। हमारा टीचर केवल और केवल दिल्ली में या देहरादून में या लखनऊ में या जुमरी तलैया में पढ़ाने के लिए नहीं बना। वो टीचर जब यहाँ से बन के जाएगा, हो सकता है उसे दुनिया के किसी भी कोने में अगर नौकरी मिले तो वो वहां जाना चाहे, तो हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स को ध्यान रखना पड़ेगा। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर हम कहीं हमारा लैकुना है, हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम पूरा आउटडेटेड है, हमारे साथ में नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डेफ बच्चों को हम साइन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एग्जाम हम कभी भी साइन में नहीं लेते, हम उन्हें लिखने के लिए कहते हैं। अरे उसे लिखना ही आया होता, उसके पास में इतनी वोकैबुलरी होती तो वो पढ़ लेता। बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास वोकैबुलरी कम है। अगर वो रिटन एग्जामिनेशन पेन पेंसिल वाला देंगे, कभी जिंदगी में पास नहीं होंगे। इसका मतलब है हम उन्हें ला रहे हैं, लेकिन हम उनको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनका नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मैं अब अपनी चीज़ों को लगभग खत्म करने के उस पर हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक बैरियर्स का, हमें जेंडर इक्वालिटी का, जियोग्राफिक डिस्पैरिटीज का, रिटेंशन एंड ग्रेजुएशन रेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, एजुकेशनल क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, कल्चरल कॉम्पिटेंसीज का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, स्टूडेंट लोन की बात जहां पर आती है, ये एक बहुत कहना चाहिए कि शायद अंडररेटेड टाइप का एक फैक्टर है, लेकिन सच्चाई ये है, क्योंकि हम अपने जीवन में देख रहे हैं, अपने रोज सामने देखता हूँ, स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही है, बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। लेकिन उनको स्कॉलरशिप मिले कहाँ से, जब एक एक आदमी 3-3, 4-4 जगह से स्कॉलरशिप ले रहा है, तो किसी का तो हक मार रहा है। ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे स्टूडेंट्स में आना चाहिए। हमारी मेंटल वेलबींग की बात मैंने आपसे पहले कर ली है। तो हम क्या करें, हम अपने कॉलेजेस को अफोर्डेबल बनाएं। किसी भी तरीके से हो सकते हैं, हम अपने फाइनेंशियल एड्स को बढ़ा सकते हैं, ट्यूशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, इनकम बेस्ड रीपेमेंट प्लान्स चला सकते हैं। हम ऐसे भी प्लान चला सकते हैं जहां पर स्टूडेंट्स को अर्न एंड लर्न दोनों तरीके की चीज़ें मिल सकें। एजुकेशनल क्वालिटी को प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स में हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम हायर एजुकेशन में बेस्ट इनपुट चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि हम अपनी कम्युनिटी के जो आसपास के कॉलेजेस हैं, हम सेकेंडरी या प्राइमरी कॉलेजेस केवल उनको अडॉप्ट करके भी वहां पर अगर हम अपने कार्यक्रम को चला लें, तो वहां से निकलने वाले प्रोडक्ट हमारे ही इंस्टीट्यूट्स में ज्यादातर आएंगे, क्योंकि वो सीख चुके होंगे कि आपके यहाँ के टीचर्स किस तरीके के हैं। एक्सेस टू हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज इन रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरियाज। सुना तो है कि कुछ विदेशी यूनिवर्सिटीज भी भारत में आने वाली हैं, चाहे स्टैनफोर्ड आ रही हो, ऑक्सफोर्ड आ रही हो, लेकिन वो आएंगी कहाँ? या दिल्ली में आएंगी, मुंबई बेंगलोर में आएंगी, क्या हमारी झुमरी तरैया में आ सकती हैं? अगर ऐसा होता तो शायद ये भी एक बड़ी बात होती। तो मेरा दूसरा थोड़ा सा इस मामले में व्यू है, मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ, जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज आए, बल्कि हमारे अपने खुद के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इस काबिल बने कि कैम्ब्रिज और इसके बराबर हम लोग हो सकें, क्योंकि हम जितना यहाँ के लोगों को समझते हैं उतना बाहर वाला हमारे लोगों को आके नहीं समझ सकता। इसके अलावा मैं जस्ट 3 चीज़ों के ऊपर
बोलूँगा कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन ये दोनों अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं। इसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा काम करना होगा। इनोवेशंस हमारे बहुत ज़्यादा भले ही ना हो, लेकिन ऐसे होने चाहिए जो हमारी डेली नीड्स को कैटर आउट कर सकते हो। पार्टनरशिप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री लिंकेजेस हों, चाहे इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस हों, चाहे वो हमारे एक्सपर्ट एक्सचेंज, टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम हो, चाहे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों। हमें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखना पड़ेगा। क्रॉस कल्चरल, क्रॉस ट्रेडिशनल, क्रॉस लैंग्वेज बैरियर्स के साथ में हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ से मिल सकता है। इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन इज ए क्रिटिकल चैलेंज। यह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है यदि हम साथ काम करें, मिलकर काम करें, एक उद्देश्य के लिए काम करें, तब जाके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हायर एजुकेशन ला पाएंगे। और इस मिलकर काम करने के लिए यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन आवर हैंड्स विद ईच अदर। Thank you very much. Thank you so much, sir. Your insight has left an indelible mark on all of us. Actually, you made us think now that our students are really thinking deeper on this particular thing, and I'm sure they will join hands with you. Thank you so much, sir, for that wonderful session. Moving on further.